Hello students, welcome back to Adviz Learning. Let's continue where we left off chapter number 8 in the previous session. As you all know, we discussed some laws related to exponents and indices, and we have already finished till question number 8 in the exercise. Let us now continue with question number 9. So the first question in question number 9 is this. We have two sub questions. Okay, apply the laws. You can see it has a negative power 3 raised to x square. इसको हम लोग लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में with positive power 3. ओके, एंड यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3 हो जाएगा. सो x मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3. So we can cancel this 9 and this 3 will get applied to the numerator as well as the denominator. यहाँ पे आ गया x रेज टू 6, 3 into 2, करेक्ट. यहाँ पे 1 upon 3 cube will be 27 and x raised to 2 raised to 3. So powers will get multiplied. You can see x raised to 6 is getting cancelled. The answer is 1 upon 27. Right? So question 9, first one completed. Second one we have 8x raised to 4 whole raised to 1 by 3 divided by x raised to 1 by 3. Let's try to simplify this. 1 by 3 जो है यहाँ पे दोनों को अप्लाई होगा, तो 8 को अप्लाई होगा तो क्यूब रूट ऑफ 8, बट x रेज टू 4 बाय 3 इसको लिख देते हैं हम लोग, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा. वाई वी आर राइटिंग इट लाइक दिस? बिकॉज डिवाइडेड बाय x रेज टू 1 बाय 3 है हमारे पास. क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. बेस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होगा डिवीजन पे. सो 4 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, you get 2 into x raised to, denominator same है, so 4 minus 1, 3 by 3, which is basically equal to 1. So the answer is only 2x. Okay, so this was question number 9. It had two easy questions. Now there are many similar questions like this. In fact, question number 10, 11, you can solve both these questions on your own. ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसा ही है. We will now directly move on to question number 12. Okay, so question number 12 का first question है 64 upon 125 whole raised to minus 2 by 3 divided by 1 upon 256 divided by 625 whole raised to 1 by 4 plus root 25 divided by root 64, cube root of 64 whole raised to 0. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ नेगेटिव पावर. पॉजिटिव पावर में लिखना है तो दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस. ऑल्सो ये पॉजिटिव 2 बाय 3 है, तो 1 बाय 3 को अंदर ले लेते हैं, होल रेस टू 2 बाहर लिख देता हूं. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन दिस, करेक्ट. तो मतलब 625 न्यूमरेटर में लिख सकते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल है ये, इसका पावर वही रहेगा बिकॉज यहाँ पे 1 अपॉन है ना, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा. ठीक है, प्लस हियर anything raised to 0 is 1. We don't need to solve anything in the square root or cube root. यहाँ पे whole raised to 0 है, मतलब खत्म हो गई बात. This is just 1. Okay, now cube root of 125 divided by cube root of 64 whole raised to 2, और यहाँ पे fourth root of 625 divided by fourth root of 256. Okay, plus 1 as it is. Cube root of 125 is 5, cube root of 64 is 4, right? Whole raised to 2 है, divided by ये 5 का फोर्थ रूट है. 625 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 5 5 5 5 4 बार आता है. ठीक है, सिमिलरली 256 के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स सी ये किसका फोर्थ पावर है. सो इफ वी स्टार्ट विथ लेट अस से 4, ये हो जाएगा 4 6 जा 4 4 जा 4 16 जा 4 4 जा 4 1 जा. तो दिस इज द फोर्थ रूट. इसका फोर्थ रूट क्या होगा, 4 होल रेस टू नथिंग प्लस 1. यहाँ पे वी हैव दिस, राइट.
So 5 square is 25 upon 4 square is 16. अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले हम लोग डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, दिस विल बी 4/5 प्लस 1 इज एज इट इज, तो यहां से 5 कैंसिल होता है, यहाँ पे 4 कैंसिल होता है, सो फाइनली वी हैव 5/4 प्लस 1, सो 5 प्लस 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 9/4, ठीक है, मतलब 2 1/4. So this should be our answer, students. Let us just continue to the next question. I hope you understood this. Okay, next one. Question number 12, second one. We have 5 raised to n plus 3 minus 6 into 5 raised to n plus 1 divided by 9 into 5 raised to n minus 2 square into 5 raised to n. तो 5 raised to n हर जगह रिपीटेड दिख रहा है. Anyway, we cannot solve any term which has a variable, क्योंकि मुझे n का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है. तो 5 raised to n को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली. एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड वन. उसमें भी सेम चीज किया था. इसको स्प्लिट कर देते हैं. 5 raised to n plus 3 को क्या लिख सकते हैं? 5 raised to n into 5 raised to 3. सिमिलरली यहाँ पे 5 raised to n into 5 raised to 1. Okay, denominator already has 5 raised to n in both the places. So अब क्या होगा? 5 raised to n को हम लोग कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे आएगा 5 क्यूब माइनस 6 इंटू 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय, इधर क्या आएगा? 5 raised to n कॉमन लिया तो 9 माइनस 2 स्क्वायर विच इज 4. तो ये टर्म बेसिकली कैंसिल हो जाता है और रिमेनिंग पार्ट वी कैन इजीली सॉल्व, राइट. So 5 cube is 125 minus 6 5s are 30 divided by 9 minus 4 is 5. So 125 minus 30 is 95. 95 divided by 5, the answer will be 19. Okay. So easy question है ये. यहाँ पे सिर्फ 5 raised to n common लेना था, right? That was question number 12. Next, let's solve question number 13. So 64 raised to 2/3 multiplied by 2 raised to minus 2 divided by 8 raised to 0 whole raised to minus half. Now this is actually an easy question. 8 raised to 0 मतलब 1 हो गया, यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट. सो ये डिवाइडेड बाय 1, तो नंबर जो था वही आंसर आएगा ना. सो 64 raised to 2/3 को सॉल्व करते हैं. तो पहले अगर 64 स्क्वायर करूंगा दैट विल बी डिफिकल्ट, तो रैदर व्हाट विल डू इज 1/3 को पहले सॉल्व करते हैं, होल रेस टू 2 पहले बाद में सॉल्व करेंगे. एंड 2 रेस टू माइनस 2 है मेरे पास, तो अगर मैं 2 को डिनोमिनेटर में लिखूं तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा, राइट. दिस इज 1, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. ओके, एंड दिस एंटायर टर्म इज रेस टू माइनस हाफ. माइनस हाफ लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले अंदर वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं. 64 रेस टू 1/3. 64 किसका क्यूब है? 4 का, तो क्यूब रूट होगा 4. इसका स्क्वायर बचा है अभी भी, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4. डिवाइडेड बाय 1 है तो वी कैन इग्नोर दैट, जस्ट रेस टू माइनस हाफ, ठीक है. तो एक 4 कैंसिल हो जाएगा 4 रेस टू 2/4 में से, ओनली 1 4 विल बी लेफ्ट, बट पावर नेगेटिव है, मतलब ये हो जाएगा 1/4 रेस टू हाफ. ओके, दैट मीन्स दिस इज 1/√4. हाफ क्या होता है? √1/√4. आंसर विल बी 1/2. क्लियर है? दैट्स क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट वन. नेक्स्ट लेट्स सॉल्व सेकंड वन. Here we have 3 raised to n multiplied by 9 raised to n plus 1 divided by, in bracket, 3 raised to n minus 1 into 9 raised to n minus 1. Now this question is very similar to the question number 12, second question. यहाँ पे भी division है ना. Let's write it like this. 9 raised to n plus 1 का मीनिंग है 9 raised to n into 9 raised to 1, ठीक है. और डिवाइडेड बाय दिस एंटायर टर्म कैन बी रिटन एज 3 raised to n minus 1 है ना, मतलब डिवीजन में 3 आ जाएगा. ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय 9 raised to n minus 1, अगेन 9 raised to n अपॉन 9 raised to 1. करेक्ट, -1 है, पावर सब्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर
सेम बेस के साथ आई कैन राइट द अदर पावर। तो 3 n कैंसिल होता है, 9 n भी कैंसिल होता है, रिमेनिंग पार्ट्स दोनों ऊपर जाएंगे। सो 9 इंटू 9 इंटू 3, ये इसका फाइनल आंसर होगा। 81 3s are 243 will be the answer. Okay, that's question number 13 completed. Let us continue. Question number 14. Here we have square root of 2 square multiplied by 4th root of 256 divided by cube root of 64 minus half raised to minus 2. इजी है ये एकदम। 2 का स्क्वायर भी हो रहा है, स्क्वायर रूट भी हो रहा है, तो आंसर आएगा सिर्फ 2। कैसे आया 2? बिकॉज 2 स्क्वायर एज इट इज रखा मैंने। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? रेस टू 1/2, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ रूट ऑफ 356 एक प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है, दिस इज 4। ऑल्सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, तो ये तो हो जाएगा कैंसल। माइनस नेगेटिव पावर है ना, मतलब ये हो जाएगा 2 raised to 2 पॉजिटिव पावर। ठीक है, तो हियर वी ओनली हैव 2, माइनस 2 स्क्वायर इज 4, so the answer will be -2. So question number 14 का फर्स्ट वन है, इसका आंसर आ रहा है -2. Let us continue. Second one, 3 raised to -6/7 multiplied by 4 raised to -3/7, 9 raised to 3/7, 2 raised to 6/7 divided by 2 square plus 2 raised to 0 plus 2 raised to -2. इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सो न्यूमरेटर पहले देखते हैं हम लोग। व्हाट डू वी हैव हियर? 3 raised to -6/7। ओके, अभी 3 का कोई दूसरा पावर तो यहाँ पे है नहीं, बट इफ यू लुक केयरफुली 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर ना, तो ये जो इंटू 9 है इसको मैं 3 स्क्वायर लिख देता हूं, साथ में 3/7 ऑलरेडी रहेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 2 raised to 6/7 है, बट 2 का दूसरा पावर हम लोग 4 को लिख सकते हैं। 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर raised to -3/7 एज इट इज। ओके, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर प्लस 2 raised to 0, इसको देखते हैं हम लोग बाद में, दिस इज सॉल्वेबल इजीली। इन द न्यूमरेटर वी हैव, अभी देखो 3 के पावर्स कौन से? 3 raised to -6/7, और यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, पॉजिटिव 6/7, करेक्ट। तो बेसिकली बेस सेम है, तो पावर्स विल गेट एडेड, -6/7 प्लस 6/7, राइट। सिमिलरली फॉर 2, 6/7, और यहाँ पे भी -6/7 है, तो प्लस -6/7, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 raised to 0 इज 1, 2 raised to -2 इज 1/2 स्क्वायर, पॉजिटिव पावर के साथ। ओके, तो अब ये -6/7 प्लस 6/7 हो जाएगा 0 इंटू 2 raised to सेम 6/7 -6/7 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, सो लेट मी जस्ट राइट इट एज 5 प्लस 1/2 स्क्वायर इज 1/4। ओके, सो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? न्यूमरेटर में ये दोनों 0 0 पावर होने की वजह से 1 हो जाएगा, 1 into 1। डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 5 20, 20 plus 1 is 21/4. So reciprocal of 21/4, answer is 4/21. Okay, that's question number 14, second one. 4/21 will be the answer. Let's continue with the next one. Okay, question number 15 में again we have some questions in the same manner. तो फर्स्ट वन यू कैन इजीली सॉल्व, उसमें भी वही करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पावर्स। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन, हर एक नंबर 2 का पावर है, तो यू विल जस्ट हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द पावर्स ऑफ 2, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइट। 15th का फर्स्ट वन यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन। लेट्स गो फॉर 15th सेकंड वन। दिस इज द क्वेश्चन गिवन, दिस इज सिमिलर एक्चुअली, लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे हर एक जो नंबर है वो 5 का पावर है। यू कैन सी 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब,
तो सब कन्वर्ट कर देते हैं पहले। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2x प्लस 2 6 12। ओके, 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। सो जो बचा हुआ पार्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 25 का क्यूब है, 5 का क्यूब है सॉरी, 3 इंटू 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बेस से में, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2x प्लस 12 प्लस दिस टर्म 2 इंटू -7 इज -14 एंड प्लस 2 2 जा 4x। और डिनोमिनेटर में जो होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो माइनस डिनोमिनेटर के बेस का पावर क्या है, 3 इंटू 2x 6x। तो यही इसका आंसर है, 5 रेज टू 2x प्लस 4x इज 6x, 6x माइनस 6x हो जाएगा 0। लेट अस राइट इट एज 5 रेज टू 6x माइनस 6x, और प्लस 12 यहां पे मुझे दिख रहा है -14। So the answer is just 5 raised to -2. Okay, that is 1 upon 5 square. So 1 upon 25 is the answer. Easy question है, question number 15 completed, right? Let's solve question 16 now. 16 का first one, again similar question to what we have done before. यहाँ पे we have 7 raised to 2n plus 3 minus 49 raised to n plus 2 divided by 343 raised to n plus 1 whole raised to 2 by 3. Okay, so 7 raised to 2n into 7 cube, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइनस 49 इज नथिंग बट 7 स्क्वायर। ओके, तो ये जो 7 का स्क्वायर करेंगे वो n by 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 343 7 का क्यूब होता है, सो क्यूब है और साथ में n प्लस 1 भी है। ओके, बट इसका एक और पावर है, तो वो पावर भी मल्टीप्लाई होगा 2 by 3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर 7 रेज टू 2n इंटू 7 क्यूब माइनस 7 रेज टू 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू 2n प्लस 2। हर जगह से 2n को अलग कर देते हैं, 7 रेज टू 2n को अलग कर देते हैं। So this can be written as 7 raised to 2n multiplied by 7 raised to 4, right? Divided by 7 raised to 2n multiplied by 7 square. Now you can see everywhere we have 7 raised to 2n common, but numerator में और क्या common है, 7 cube भी common है, right? If we take 7 raised to 2n into 7 cube common, तो यहाँ पे बचता है सिर्फ 1 माइनस यहाँ पे 7 रेज टू 2n तो जा चुका है कॉमन बाहर, 7 रेज टू 4 में से 7 रेज टू 3 बाहर गया है, तो एक 7 रेज टू 1 सिर्फ पीछे बचा है, राइट? डिवाइडेड बाय 7 रेज टू 2n इंटू 7 स्क्वायर। तो ये पार्ट तो हो जाएगा कैंसल, एंड 7 रेज टू 3 अपॉन 7 रेज टू 2 मतलब 7 रेज टू 3 माइनस 2। दिस इज द लॉ फॉर डिविजन। ओके, 1 माइनस 7 क्या होता है, -6। So answer is 7 into -6 minus 42. Okay, that's question number 16. First one. I hope it is clear. Easy question था, सिर्फ step by step solve करना है हम लोगों को। Let's go to question 2. So 27 raised to 4 by 3 plus 32 raised to 0.8 plus 0.8 raised to -1. This is the question we have. Let's try to solve it step by step. 27 का मतलब हो गया 3 क्यूब, होल रेज टू 4 by 3 है। 32 is nothing but 2 raised to 5, 0.8 as it is रखा। ओके, यहाँ पे 8 by 10 लिख सकते हैं इसको, रेज टू -1 है उसको एज इट इज रखा है फिलहाल, but this can also get reduced to, we have 2 4s and 2 5s। तो मैंने सब कुछ रिड्यूस करके लिखा है,
अब यहाँ पे जब पावर्स मल्टीप्लाई होगी 3 इंटू 4/3, 3 विल गेट कैंसल्ड, वी आर ओनली लेफ्ट विथ 3 raised to 4, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 2 raised to 5 इंटू 0.8, 5 8 जा 40 होता है, बट एक डेसिमल की वजह से दिस विल बिकम 2 raised to 4। 2 raised to 40 नहीं लिख सकते ना, तो एक डेसिमल शिफ्ट हुआ इसीलिए 4 हो गया ये। एंड रेस टू -1 है तो इसको उल्टा लिख सकते हैं विथ पॉजिटिव पावर। सो यही सॉल्व करना है बस। 3 raised to 4 is 81, 2 raised to 4 is 16, 5/4, ओके 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करके लिख देते हैं। 4 1 जा 4, पॉइंट 10 हुआ तो 4 2 जा 8, 5 जा। सो वी हैव 81 plus 16, 97 plus 1.25, आंसर इज 98.25, ओके 98.25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 completed, second and first both questions, okay। Let us now go to the next one. So we have √32 minus √5 whole raised to 1/3 multiplied by √32 plus √5 whole raised to 1/3. Let's think of these two brackets as separate numbers. इसको a ले लेते हैं, इसको b. What is a raised to m into b raised to m? पावर सेम है ना दोनों का, तो ये होता है ab raised to m, ओके मतलब यहाँ पे √32 minus √5 into √32 plus √5 whole raised to 1/3, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, दोनों का सेम पावर है इसीलिए। ऐसा लिखने के पीछे बड़ा रीजन है, यू कैन सी दैट, सो दिस इज a plus b into a minus b, फॉर्मूला क्या है, a square minus b square, okay, so this can basically be written as √32 square minus √5 square whole raised to 1/3 as it is। अब √32 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 32, सिमिलरली √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। 32 minus 5 is 27, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, so cube root of 27, answer is 3। It's very easy, if you just need to identify the formula here, okay, बहुत easy question है। Next question number 17 का second one, we have x raised to 1/3 minus x raised to minus 1/3 multiplied by x raised to 2/3 plus 1 plus x raised to minus 2/3, ओके। नाउ इसको देख के और एक फॉर्मूला याद आना चाहिए सभी को, क्या है वो फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ हाउ आर दीज टू सिमिलर, यहां पे a की जगह पे क्या है, x रेज टू 1/3 और b की जगह पे क्या है, x रेज टू माइनस 1/3। तो ब्रैकेट में भी तुम लोग देखोगे वही है जो यहाँ पे होना चाहिए, a स्क्वायर का मतलब होगा x रेज टू 1/3 का स्क्वायर, मतलब x रेज टू 2/3, ओके। ए बी का मतलब होगा x रेज टू 1/3 इंटू x रेज टू माइनस 1/3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। b स्क्वायर का मतलब होगा x रेज टू माइनस 2/3, इसका स्क्वायर। तो यही यहाँ पे लिखा है, सिर्फ ये 1 कहां से आया, यहाँ पे अगर बेस अलग अलग नहीं है, पावर्स अलग अलग है, बेस सेम है, तो पावर्स विल गेट एडेड। 1/3 माइनस 1/3 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे x रेज टू 0 आता है, मतलब 1, so that's why this is correct। So this entire term can be written as x raised to 1/3 whole cube, मतलब a क्यूब हो गया, माइनस x raised to माइनस 1/3 whole cube, b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। अगर ये आइडेंटिफाई कर दिया तो सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू -1 आ जाएगा। So basically we have x minus 1 upon x, x square minus 1 upon x. This will be the answer for question number 17, second one. Okay, or you can leave it like this also. So सिर्फ एक फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर दो, your problem will be solved.
Okay, so that's question 17 for you. Let's go to question 18 now. We have a question here, x raised to m upon x raised to n whole raised to L into x raised to n upon x raised to L whole raised to m into x raised to L upon x raised to m whole raised to n. तो ये एक्चुअली एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि बेस हर जगह पे सेम दिख रहा है हम लोग को ऑलरेडी, राइट? सो ऑल वी नीड टू डू इज ओपन द ब्रैकेट्स एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. व्हाट डू वी हैव हियर? अगर यहाँ पे m है यहाँ पे l है, मतलब पावर्स मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x रेस टू एम एल. सेम यहाँ पे भी होगा x रेस टू एन एल, राइट? बीच में क्या आएगा? x रेस टू n इंटू एम, मतलब एम एन, और l इंटू एम एल एम, राइट? सिमिलरली यहाँ पे x रेस टू एन एल और x रेस टू एम एन. सो ये करने के बाद यू विल रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड. x रेस टू एम एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सेम x रेस टू एम एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. एंड दिस वन विल ऑल्सो गेट कैंसल. सो आंसर आएगा सिर्फ 1. करेक्ट? सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. Question number 18, second one is somewhat similar. We have x raised to a plus b upon x raised to c whole raised to a minus b multiplied by okay. So what we will do here is first you will check that यहाँ पे a plus b है, यहाँ पे a minus b है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली. a plus b इंटू a minus b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x रेस टू c भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a माइनस b के साथ. ओके, सो सिर्फ एक्सपांड करना है हम लोगों को. यहाँ पे भी सेम b प्लस सी b माइनस सी क्या होगा? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. सेम x a b माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा ये. हियर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x रेस टू b मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a. नाउ डायरेक्टली तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे. वी हैव x रेस टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस, अच्छा पहले हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देन आई विल शो यू, दैट विल बी इजियर फॉर यू. c विल गेट मल्टीप्लाइड इन द ब्रैकेट, सो ac माइनस bc आएगा यहाँ पे. सिमिलरली x रेस टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x रेस टू ab माइनस ac, x रेस टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x रेस टू bc माइनस ab. Still you can see nothing is getting cancelled, but you are forgetting that each and every term has the same base. सब कुछ सेम बेस के साथ है ना. तो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है देखो, x रेस टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में जो भी होगा उसके पावर्स ऐड होंगे. तो इसके मल्टीप्लीकेशन में ये है, तो इसका पावर क्या है? प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये हो गया न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो अगेन मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होता है. AC माइनस BC प्लस AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB. ओके, तो न्यूमरेटर के सारे मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स, डिनोमिनेटर के सारे मल्टीप्लीकेशन वाले एक्सपोनेंट्स, सबके पावर्स ऐड हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल गेट कैंसल्ड. ए स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है. b square negative positive, c square negative positive. Same thing in the denominator, ac minus ac minus bc plus bc, ab minus ab. Everything is gone. So we are only left with x raised to 0 upon x raised to 0, which will be nothing but 1. Answer आएगा 1 upon 1, 1. ठीक है? So that's the solution here, students. I hope it is clear. Let us now go to question 19. So question 19, first one, we have lmth root of x raised to l upon x raised to m multiplied by mnth root of
x रेज टू m अपॉन x रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय n lth रूट ऑफ x रेज टू n अपॉन x रेज टू l। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। रूट का मतलब क्या होता है? रेडिकल साइन है, मतलब फ्रैक्शनल पावर है। सो x रेज टू l अपॉन x रेज टू m का फ्रैक्शनल पावर क्या होगा? 1 अपॉन lm, राइट? दिस इज रूट, दैट्स वाई 1 अपॉन lm। सेम यहाँ पे भी सबको ऐसे ही लिख देते हैं। इसका होगा 1 अपॉन mn और इसका होगा 1 अपॉन ln। ओके, अभी ये पावर्स अंदर मल्टीप्लाई होंगी, ऊपर न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट को भी और डिनोमिनेटर में भी, राइट? एक्स रेज टू एल इंटू 1 अपॉन एल एम, एल एल कैंसिल हो गया, यहां पे आएगा सिर्फ 1 अपॉन एम। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एम कैंसिल होगा, ये होगा एक्स रेज टू 1 अपॉन एल। लेट्स राइट इट प्रॉपर्ली, 1 अपॉन एल। हर जगह पे यही हो रहा है, यहां पे m कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन n, यहां पे n कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन m, यहां पे भी n कैंसिल होगा, x रेज टू 1 अपॉन l, यहां पे l कैंसिल होगा, x रेज टू 1 अपॉन n। सो वंस अगेन यू कैन सी एवरी टर्म इज गेटिंग कैंसल्ड। सो आंसर बचेगा सिर्फ 1। ओके, क्वेश्चन 19 का भी आंसर क्या है? सिर्फ 1। सो इन क्वेश्चंस you will have to sometimes identify the formula or you can just solve using the laws, you will get the answer easily। ठीक है, सेकेंड वन में देखते हैं अभी क्या है। x रेज टू a अपॉन x रेज टू b होल रेज टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू b अपॉन x रेज टू c होल रेज टू b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, x रेज टू c अपॉन x रेज टू a होल रेज टू c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर। ओके, तो पहले अंदर वाला पार्ट देखते हैं। सेम बेस, पावर्स अलग अलग, दैट मीन्स दे विल गेट सब्ट्रैक्टेड, राइट? डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन होगा। अब ये a माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम यहां पे भी x इंटू बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एंड सेम यहां पे भी x रेज टू c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। नाउ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ओके, तो ये किसका हो गया? बी क्यूब माइनस सी क्यूब का। और सेम यहां पे भी सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला, राइट? सो व्हाट विल हैपन हियर? बेसेस आर सेम, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तीन एक्सपोनेंट्स का, पावर्स विल गेट एडेड। सो एक्स रेज टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ए क्यूब कैंसल, बी क्यूब भी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, सी क्यूब भी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, एक्स रेज टू 0 बचा सिर्फ, विच इज इक्वल टू 1, राइट? तो सेम आंसर वी आर गेटिंग हियर ऑल्सो। हर एक क्वेश्चन का आंसर 1 ही आ रहा है, एज यू कैन सी। नाउ 19th वन हैज वन मोर सब क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड वन। ओके, थर्ड वन में x रेज टू a अपॉन x रेज टू माइनस b है एंड होल रेज टू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज समवट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, यू कैन गेस फ्रॉम हियर। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है इसमें, क्या है वो देखते हैं हम लोग। इस बी सी प्लस सी स्क्वायर, x रेज टू c अपॉन x रेज टू माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ओके, let's do the same thing in this question। so यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर we can see that bases are same, let's subtract the indices a minus, यहाँ पे माइनस बी का साइन अलग है, so a माइनस माइनस बी, बाकी का पार्ट पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
a square minus ab plus b square. Okay, similarly here what do we have? X raised to b minus minus c. अगेन बाकी का पार्ट मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर. एक्स रेज टू सी माइनस माइनस ए, so c square minus ca plus a square. Now when you simplify this we get another formula. This is a plus b multiplied by a square minus ab plus b square, right? Similarly here b plus c multiplied by b square minus bc plus c square, c plus a multiplied by c square minus ca plus a square. This is another formula. ये किसका formula है? This is similar to the previous one, सिर्फ साइन का फर्क है. ये a क्यूब प्लस b क्यूब का है फॉर्मूला. वी हैव स्टडीड दिस इन एक्सपांशंस आल्सो एंड फैक्टराइजेशन में भी इसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, राइट? सो x रेज टू b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब. अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ऑल द पावर्स विल गेट एडेड, सो यू गेट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब. तो यहाँ पे कैंसिल कुछ भी नहीं होगा, सब ऐड हो रहा है. a क्यूब प्लस a क्यूब इज 2a क्यूब, b क्यूब प्लस b क्यूब इज 2b क्यूब एंड प्लस 2c क्यूब. दिस विल बी योर आंसर. द लीस्ट यू कैन डू हियर इज टेक 2 कॉमन. हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 19 completed students. I hope you have understood it. Let's solve question 20 now. The question is a raised to minus 1 plus b raised to minus 1 divided by a raised to minus 2 minus b raised to minus 2. So let's just simplify. This is 1 upon a, this is 1 upon b divided by 1 upon a square minus 1 upon b square. Okay, सिर्फ जो माइनस था उस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एवरीवेयर. दिस इज b प्लस a डिवाइडेड बाय ए बी. ओके, ये न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके, दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड. न्यूमरेटर एज इट इज रखा, बट डिनोमिनेटर में यहां पे एक ए बी और यहां पे एक ए बी कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली 1. कैसे आया? इसके साथ नीचे वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एक ए बी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ एक ए बी बच गया. ओके, सिमिलरली यहां पे वी हैव बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इट कैन बी रिटन एज बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए. ओके, फॉर्मूला है ना, तो ये जो बी प्लस ए वाला पार्ट है ये भी पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनल आंसर में ए बी जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में b minus a. Okay, that will be the solution, the simplification for question number 20, first one, ab upon b minus a. Okay, let's solve question number 20, second one now. There are two sub questions as you can see. 1 upon 1 plus a raised to m minus n plus 1 upon 1 plus a raised to n minus m. Okay, let us try to simplify this. This can be written as a raised to m minus n है ना, मतलब a raised to m upon a raised to n, right? Similarly, this can be written as 1 plus a raised to n upon a raised to m, उल्टा. So अब क्या होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. a raised to n plus a raised to m upon a raised to m. Similarly, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट. सो व्हाट हैपेंस इज यहां पे a रेज टू n जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन a रेज टू n प्लस a रेज टू m एज इट इज रहेगा, एंड यहां पे सेकेंड फ्रैक्शन में a रेज टू m जाएगा न्यूमरेटर में, a रेज टू m प्लस a रेज टू n एज इट इज. तो यू कैन सी दैट बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम ओनली, देयर इज नो डिफरेंस. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो साथ में लिख देते हैं. न्यूमरेटर में क्या है? a रेज टू m प्लस a रेज टू n, दोनों सेम ही है. बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, so you can cancel this complete term and the answer is 1. Okay, so question number 20 का आंसर भी आया है 1.
I hope the question is clear. So in this manner, we have finished till question number 20 in this session. And I think that is it for today's session, students. I hope you have understood all the questions. Whenever we start in the next lecture, we'll start with question number 21. So keep practicing. Okay, that's it for today. Thank you very much for listening. Bye, students.